السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا تھا، ہم نے اپنا نیا چینل شروع کیا ہے اسلامی معلومات کے نام سے۔ اسلامی معلومات چینل کے مادھیم سے آج ہمارے خاص مہمان مولانا ظفر عباس صاحب، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ سوالات لے کر۔ آئیے ان سے روبرو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا نام پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ میرا نام سید ظفر عباس زیدی، امام جماعت شیعہ مسجد محلہ انصاریان سہارنپور۔ مولانا صاحب، آپ کے پاس جو آج ہمارا آنا ہوا ہے، کچھ سوالات لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں کو مسلمان مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ایسے ماحول میں جب نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بدظن کیا جا رہا ہے، ایسے کے اندر آپ ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال بہت پیارا ہے۔ کاش ایسے سوالات ہوں، ایسے ڈائلاگس ہوں تو اس سے امت ایک دوسرے کے قریب آئے گی، اور یقیناً وحدت کے اندر ہی امت کی سربلندی ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ کیا آپ شیعہ حضرات برادران اہل سنت کو مسلمان مانتے ہیں؟ میرا پہلے تو آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے آج تک علماء شیعہ میں سے کسی بھی عالم دین کا کوئی ایسا فتویٰ دیکھا جہاں نعوذ باللہ مسلمانوں کو کافر بتایا گیا ہو یا منافق بتایا گیا ہو؟ ویسے مولانا صاحب، آپ کا سوال بہت پیارا ہے۔ میں نے واقعی آج تک یہ ادھر سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، کیونکہ کچھ چند روز پہلے ہی میرے سامنے بات آئی تھی جسے ایک شیعہ حضرات کو لے کر ایک نامناسب بات کہی گئی تھی، وہ میں یہاں اپنے چینل پہ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے میں سوال لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ ان کا بھی نظریہ دیکھوں کیا ہے۔ بس اس متعلق ذرا آپ ان سوال پہ روشنی ڈالیں۔ نامناسب گفتگو تو ہمارے لیے صدیوں سے ہو رہی ہے، مگر الحمدللہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پیغمبر اکرم کے چاہنے والے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی جانتے ہیں۔ اور خود ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی کا فرمان بھی ہے کہ سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہمارے نفس و جان ہے، یعنی فقط بھائی نہیں ہے، نفس و جان ہے۔ سنی ہمارے سر کا مقدس تاج ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا خون ہمارا خون ہے، ان کا مال ہمارا مال ہے، ان کا ناموس و عزت ہمارے ناموس و عزت ہے۔ جہاں تک سوال ہے ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں، تو اب تک میں زبانی کر رہا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے توضیح المسائل، یعنی جس کے اندر مسائل درج کیے جاتے ہیں، سید ابو القاسم الخوئی کی۔ اور یاد رہے کہ اس سے معتبر سمجھنے کا ذریعہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ فقط سید ابو القاسم الخوئی نہیں، جتنے بھی مراجع کرام ہیں اس سلسلے میں سب کا یہی فتویٰ۔ مثلا فرماتے ہیں کہ اسلام میں کون داخل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر کافر کلمہ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے تو مسلمان رہتا ہے۔ اب اگر کافر بھی یہ کلمہ پڑھ دے مسلمان ہونے کی نیت سے مسلمان ہے، تو ایسا امت میں کون سا فرقہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو جو بھی اللہ کو ایک مان رہا ہے، محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مان رہا ہے، مسلمان ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ عربی میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی زبان کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار کر لے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لے۔ تو اس کے ساتھ ذرا سا اضافہ یہ کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بھی مانے، یعنی اگر آپ کے بعد وہ نبوت کا قائل ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، تو اسلام سے خارج ہے، چونکہ نبوت آپ کے اوپر ختم ہو چکی ہے۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اس کا دوسرا ایک میں اور مسئلہ حل کرتا چلتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر نعوذ باللہ اپنے سنی بھائیوں کو مسلمان نہ مانتے تو ہمارے فقیہ کا کبھی فتویٰ نہ ہوتا، بلکہ فقیہ تمام فقہا کا فتویٰ ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ توضیح المسائل کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو ایک باب آتا ہے میت سے متعلق، مثلا میت کو غسل و کفن دینا، تو اس کے لیے فرماتے ہیں اسی توضیح المسائل کے اندر مسئلہ نمبر 548 کے اندر کہتے ہیں ہر مسلمان کو، چاہے وہ شیعہ اثنا عشری نہ ہو، یعنی چاہے سنی بھی ہو شیعہ نہ ہو، غسل و کفن دینا اور نماز کے بعد دفن کرنا ہر شیعہ پر مکلف پر واجب ہے۔ اگر کچھ لوگ کفن و دفن کریں تو باقی سب سے ثابت ہو جائے گا، الگ مسئلہ ہے، یعنی اگر چند لوگ خدمت میں لگ گئے اب سب پہ واجب نہیں، مگر اگر کوئی نہیں ہے اور وہ مرنے والا شیعہ نہیں ہے فقط مسلمان ہے تو واجب ہے
कि गुस्ल भी दें, कफन भी पहनाएं और उसके ऊपर नमाज भी पढ़ें। तो अगर हम उनको मुसलमान ना मानते तो गुस्ल और कफन क्यों करते? हमारा फकीर पर नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों देता? हम तो हर नमाज मैयत के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह तू बख्श दे कुल मोमिनीन को और मोमिनात को, और बख्श दे कुल मुस्लिमीन को और मुस्लिमात को। बताइए हम कैसे मुसलमान नहीं मानते? बहुत बढ़िया। अगर मुसलमान मानते हैं तो शिया सुन्नी के दरमियान निकाह जायज़ जानते हैं? बिल्कुल जायज़ है जनाब। हमारे यहाँ कोई ऐसा फतवा नहीं कि मना किया गया कि निकाह नहीं होगा, बिल्कुल निकाह जायज़। जब मुसलमान है, क़िबला एक है, दीन एक है, नबी एक है, किताब एक है, तो निकाह क्यों नहीं होगा? निकाह भी जायज़, बिल्कुल जायज़। क्या अगर एक सुन्नी शिया हो जाए, सुन्नी रहते हुए उसने जो नमाजें पढ़ी हैं क्या वो दुरुस्त हैं? और अगर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, उसने ज़माना कुफ्र में जो नमाजें नहीं पढ़ी, क्या वो उसे पढ़नी पड़ेगी? बहुत प्यारा सवाल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर कोई सुन्नी भाई शिया हो जाए तो जो नमाजी वो अपने मसलक के तय पढ़ चुका है, उसके मुताबिक अदा कर चुका है, उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसने मसलक बदला है, दीन नहीं बदला। दीन तो उसका इस्लामी था, मसलक था, हर मसलक के अंदर नमाज है, तो जो नमाजों पढ़ चुका है वो ठीक है। बरक्स इसके कि अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उससे वो जो पिछले उसकी नमाजें नहीं पढ़ी, मतलब 60 साल की उम्र में मुसलमान हुआ था और 60 साल की नमाजें कज़ा करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको कज़ा नमाजें इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि उसने मसलक नहीं बदला, दीन बदला है। तो जब दीन बदला है तो आज ही मुसलमान हुआ है, आज ही से उसके ऊपर अहकाम की शरीयत जो है वो जारी होंगे। मगर जो सुन्नी शिया हुआ है, जो कि पहले से मुसलमान था, मसलक बदला है, दीन नहीं बदला, इसलिए जो नमाजें पढ़ चुका है वो ठीक है और अपनी कज़ा नमाज नहीं पढ़ना। बहुत बढ़िया। आप लोग गमे हुसैन में जो सीना पीटते हैं, क्या ये अमल असहाब रसूल या अज़वाज रसूल से साबित है? अज़वाज रसूल में से किसी ने किया है? अगर किया है तो आप किसी अहले सुन्नत की मोतबर किताब से साबित कर सकते हैं? और उसके अलावा मातम की तारीफ यानी उसकी परिभाषा क्या है, क्या आप किसी मोतबर किताब से साबित कर सकते हैं? मैं खुद अहले सुन्नत मसलक से हूँ, मैं भी इसका जवाब दिलचस्पी से जानना चाहूँगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। और अगर ऐसा सवाल हो तो एक दूसरे के करीब आएंगे। पहले मातम के माना में जाते हैं। मातम कहते किसे? यानी गुजर जाने वाले के लिए जिससे इंसान मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, तो जो उसके बिछड़ जाने का इजहार वो करता है, उसको मातम कहा जाता है। जिसकी बेहतरीन दलील है कि सीरत इब्न हशाम 2 जिल्दों में, उसमें पैगंबर अकरम की वफात के बाद जो आपके लिए असहाब ने, आपकी फुफियों ने, जनाब सफिया वगैरह ने मरसिया कही हैं, तो उन्होंने उसमें ये लिखा सफिया का मातम, फला सहाबी का मातम, उनका बहुत सा मरसिया है। तो मरसिया भी मातमी की एक शक्ल है, या उसके लिए नोहा पढ़ना ये भी मातमी की एक शक्ल है, या इंसान अपने सीने और सर को पीट ले, ये भी इजहार गम का एक तरीका है। अब आपने पूछा ये असहाबो अज़वाज में से किसी ने किया है कि नहीं, तो जहां तक ताल्लुक है मरसिए का और नोहे का, मेरे पास इस वक्त ये तारीख़ तिबरी है, इसका हिस्सा 2 यानी दूसरी जिल्द, अल्लामा अबू जरीर तिबरी, बल्कि अल्लामा भी गलत है, इमाम अबू जरीर तिबरी, ये खुद अपने वक्त के अहले सुन्नत के इमाम गुजरे हैं, ये इनकी तारीख़ है जो 10 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर ये खुद बयान फरमाते हैं, आपने चूंकि अज़वाज से मुतालिक पूछ लिया है, कहते हैं एक रिवायत है कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिलसिले में कि सईद बिन मुसय्यब की रिवायत है कि जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा ने उन पर नोहा करने वालियों को बिठाया, यानी उनकी कब्र पर नोहा करने वालियों को बिठाया। इतने में हज़रत उमर आ गए और उनके दरवाजे के पास आ खड़े हुए। आपने उनको अबू बकर पर नोहा और बैन करने से रोका, यानी वो औरतें हज़रत अबू बकर की कब्र पर बैठकर या उनके घर में बैठकर नोहा कर रही थी या बैन कर रही थी, तो उनको रोका, मगर वो औरतें बाज नहीं आई और उन्होंने इनकार कर दिया, यानी उनका हम नोहा भी करेंगे, हम बैन भी करेंगे। अब पहला मेरा सवाल यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे रुक कर ये बात मैं कहूँगा कि जो औरतें रो रही थी, गिरिया कर रही थी, तो यकीनन दौरे रसूल की औरतें थी,
इन्होंने रसूल अल्लाह को देखा था, और जो रसूल को हालत ईमान में देख ले, मर्द हो या औरत, वो सहाबी है, मर्द है तो सहाबी है, औरत है सहाबिया है, तो यकीनन ये औरतें भी शरीयत जानती थी। अच्छा, जो आए हैं सहाबा और नहीं है, फकत हजरत उमर है, अब उन्होंने आने के बाद टाटा है, मगर औरतों ने हजरत उमर की बात से इनकार कर दिया, कहने हम रोएंगे भी और हम बैन भी करेंगे। इसका मतलब इनके नजदीक ये काम जायज था। फिर कहते हैं कि औरतों ने बात आने से इनकार कर दिया, उमर ने हशाम बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर अबू कहाफा की बेटी यानी अबू बकर की बहन को पकड़कर मेरे पास लाओ। अब यानी यहाँ देखें कि वो अंदर घुसा रहे हैं किसको, हशाम को, हशाम इब्ने वलीद को, कि तुम अंदर जाओ और हजरत अबू बकर की बहन को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जब आयशा ने उमर को हशाम को ये हुक्म देते हुए सुना तो बोली, हशाम मैं तुम्हें अपने घर में दाखिल होने की ममानियत करती। अब एक मामला और आ गया, हजरत आयशा भी रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं और हजरत उमर से ज्यादा रसूलुल्लाह की सोबत में रही। वो तो रात को अपने घर भी चले जाते थे, ये तो रात को भी साथ रहती थी, ये भी शरीयत जानती थी, ये भी दीन जानती हैं। अगर कहीं मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, और उसके बाद जो है हजरत उमर ने हशाम से कहा कि अंदर जाओ, यानी वो अंदर घुस गए। अब मैं तुमको इजाजत देता हूँ। भाई जब घर हजरत आयशा का है तो हजरत उमर इजाजत देने वाले कौन है, मगर उन्होंने उनके घर के अंदर उसको दाखिल कर दिया। हशाम अंदर घुस गए और उनमें फरवा यानी हजरत अबू बकर की बहन को उमर के पास पकड़ लाए। उमर ने दुर्रा उठाकर उनके कई बार रसीद किया, यानी हजरत अबू बकर की बहन के ऊपर दुर्रा रसीद किया हजरत उमर ने। और दुर्रे की आवाज सुनकर लोहा करने वालियां सब भाग खड़ी हुई, यानी उन्होंने हुजरे से निकल गई। अब पता नहीं चला कि ये लोहा करना उम्मुल मोमिनीन के नजदीक जायज था, हजरत उमर के नजदीक नाजायज था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत उमर दीन के बारे में ज्यादा जानते हैं या हजरत आयशा ज्यादा जानती हैं? कोई इनमें से तय नहीं हुआ। उन्होंने नहीं कहा हम तो गलती कर रहे थे अब नहीं करेंगे, नहीं, वो अपने बात के ऊपर अड़ी रही। इसी रिवायत को दूसरी तरह के ऊपर अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया कि जब किसी ने पूछा कि आप तो नूह के कायल हजरत उमर मना करते हैं, तो आपने कहा कि खुदा उमर पर रहम करे, वो एक चीज भूल गए। असल में एक बार पैगंबर ने फरमाया था, कुछ लोग एक मैयत पर बैठे हुए नोहा कर रहे थे, कहा ये नोहा कर रहे हैं, इस मैयत पर आजाब हो रहा है। तो पूछा कि ये मसला भी क्या, मैयत पर आजाब हो रहा? कहा नोहे की वजह से मैयत पर आजाब नहीं हो रहा है, वो जो मरा था पैगंबर ने फरमाया था उसके गुनाहों की वजह से उस पर आजाब हो रहा। तो यानी अगर एक इंसान ने गुनाह किए हैं तो उसके गुनाहों की वजह से आजाब होगा, ना कि उसके ऊपर जो है रोने के नोहा करने से। अच्छा, अल्लाह की अदालत पर भी फर्क पड़ता है नाउजुबिल्लाह कि नोहा तो मैं कर रहा हूँ, आजाब उसमें खता को हो रहा है। तो साबित होगा कि जनाब आयशा ने नोहा भी पढ़वाया है, मरसे पर बैन भी करवाए हैं और रोने वालियों को बाकायदा दावत दी है। अब ये कहना कि जनाब सीने का पीटना और चेहरे का पीटना, अल्लामा इब्न कसीर की तारीख इब्न कसीर आप पढ़ें, जिल्दे पंजुम 5वीं जिल्द के अंदर पैगंबर की वफात के हालात का मुलाहिजा फरमाए। खुद जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसके अंदर रिवायत करती हैं कि जब पैगंबर की वफात का वक्त करीब आया तो आपका सरे मुबारक मेरी जान पर था कि मैंने देखा यकायक आपकी रूह परवाज हो गई। मैंने आपका सर तकिए पर रखा और औरतों के साथ अपना सीना और चेहरा पीटना शुरू कर दिया। अब साबित हुआ ना कि उम्मुल मोमिनीन ने सीना भी पीटा और उम्मुल मोमिनीन ने चेहरा भी पीटा। तो अगर ये कोई नाजायज काम होता तो पैगंबर के घर में ये भी जनाब आयशा भी अमल कर रही थी कल और औरतों के साथ। इसका मतलब और अज़वाज भी थी, आपकी बेटी भी थी और सहाबियात दिगर भी मौजूद थी। तो इसका मतलब पैगंबर की वफात पर मातम हुआ, ये सीना पीटना भी साबित हो गया और चेहरा पीटना भी साबित हो गया। ये बहुत बढ़िया आपने दलील के साथ बात की। एक सवाल और है कि अक्सर करके ये बात उठती है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, मतलब उस पर एक शेर भी बना हुआ है कि जिंदा और जावेद का मातम नहीं हुआ। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में खास तौर से बोलिए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन ये जो मातम होता है ना, शहादत से दर्जात बुलंद होते हैं, इस वजह से नहीं होता। मातम होता है इस चीज का जो उनका मुसीबत पड़ी है और उस जुदाई का जो हमसे जुदा हो गए। अच्छा, जरा देखते हैं कि शहादत के मौके पर आया खुशी का इजहार किया जाए या गमी का इजहार किया जाए। अगर किसी भी कुतुब अहादीस में से किसी किताब के अंदर जो अहादीस पर मुश्तमिल हो, हमें ऐसी एक हदीस दिखा दीजिए कि जहां किसी सहाबी की शहादत की इत्तला आई हो। अब पैगंबर अकरम
حضرت मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया हो, बल्कि इसके बरक्स मिल जाएगा कि आपने गम का इजहार किया ना कि आपने खुशी का इजहार किया। मसलन सीरत इब्न हिशाम जिल्द अव्वल जंगी ओहद के अंदर जब जनाब हमजा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है तो अंसार की औरतें अपने मकतूली पर आंसू बहा रही थी, तो आप का गुजर हुआ और नूहे की आवाज सुनी तो इरशाद फरमाया सब पर होने वाले, मेरे चचा हमजा पर होने वाला कोई नहीं। जब अंसार ने ये बात सुनी तो जाकर अपनी औरतों से इसका तस्करा किया, तो तमाम औरतें जमा हुई और उन्होंने जनाब हमजा पर नोहा किया और फिर रसूल अल्लाह ने उनको दुआएं खैर दी। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा, यहाँ तक कि जब भी अंसार में किसी का इंतकाल होता था, रिवायत में है औरतें पहले जनाब हमजा पे रोती थी, उसके बाद अपने मरने वाले के ऊपर रोती थी। सीरत इब्न हिशाम के अंदर रिवायत मौजूद है। इतना ही नहीं, जनाब पैगंबर अकरम के एक सहाबी मशहूर मरूफ जनाब साद की जब वफात हुई है तो पैगंबर उनके साथ बाकायदा कब्रिस्तान में मौजूद है, आपने उनके दफन गफर में हिस्सा लिया है, बड़े अजीम सहाबी थे। सीरत इब्न हिशाम नहीं, उसमें तबक़ात इब्न साद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि पैगंबर ने जिस वक्त जनाब साद की माँ खुद कब्रिस्तान में थी और उन्होंने कब्र के ऊपर खड़े होकर लोहा पड़ा जनाब साद के ऊपर, अदा साद तुझे जन्नत मुबारक हो, क्योंकि जनाब साद के कफन और दफन में रसूल अल्लाह ने हिस्सा लिया था, उनकी कब्र मुबारक में लेटे भी थे। तो आपने फरमाया कि साद की माँ तुझे कैसे पता, अभी अभी साद को कब्र ने बहुत तेजी से पकड़ा है, क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चों के साथ कुछ सख्त थे। तो फिर उन्होंने जब लोहा पढ़ा और कुछ उनकी तारीफ की है तो हज़रत उमर ने कहा साद की माँ चुप हो जा, साद का जिक्र ना कर। मगर पैगंबर ने रोक दिया, कहा उमर खामोश हो जाओ, क्योंकि साद की माँ सच्ची है, हर नोहा करने वाली झूठी है मगर साद की माँ सच्ची है। तो पता चला उस लोहे की मुमानियत है जिसके अंदर झूठ हो, अगर लोहे में सच है तो पैगंबर के सामने पढ़ा गया और जनाब साद की कब्रों पर खड़े होकर उनकी वालदा ने पढ़ा और पैगंबर ने उनकी तारीफ की है। हजरत उमर ने हमारी मुखालफत की है तो हमारे ऊपर रसूल अल्लाह का इत्तबा वाजिब है, ना कि किसी और का। तो जब रसूल अल्लाह ने काम खुद कराया है और करने वाले की तारीफ भी की है तो हमारे लिए बच्चा है। बहुत बढ़िया। तो नाज़रीन, आपने देखा आप लोगों के सवाल हम लेकर मौलाना साहब की खिदमत में हाजिर हुए थे और माशाल्लाह जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि दलील के साथ जवाब मिला, आप लोग मुतमईन भी होंगे। फैसला आप लोगों का है। आप इसी तरह के सवाल हमारे तक भेजते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल इस्लामी मालूमात के साथ। आने वाली और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।